Hello dear learners, I welcome you all to our channel once again. Here, complex ideas meet with easy explanations. Prime objective of our channel is to make mathematics meaningful and interesting together. Always remember one thing, that mathematics gives us vision and hope that every problem has a solution. And so keep exploring, keep learning and keep growing with Prime Brain. And don't forget to support us by hitting the like and subscribe button for more such insightful videos and lessons. Enjoy the lesson. Thank you. Hello learners, welcome to our channel once again. I hope you all are doing well in your studies. So today we are going to discuss some of the word problems and some of the fundamental questions related to sum of n terms of an AP. So this is about the question. So this is the question. This is the first question. So if sum of first n terms of an AP is 4n minus m square, then what is the first term? So it is very easy. पहले n टर्म्स AP के पहले n टर्म्स का सम अगर इस फॉर्मेट में दिया है 4n minus m square के टर्म में, देन हमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म या फिर सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोथ आर सेम थिंग. तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह पे फर्स्ट का जो आंसर होगा सम ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में n इक्वल्स टू 1 हो, and if n equals to 1 it means 4n minus n square, this is equals to 4 into 1 minus 1 square, that is equals to 4 minus 1, that is 3. So this is your first term, right? So this is nothing but an, sorry this is sn, right? sn, और ये जो हमने निकाला है ये हमारा s1 है, और s1 means sum of first term और a1 both are same, so this is equals to a. So our first term of the AP is 3. Second part is what is the sum of first two terms, means s2 कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है. हमें sn given है that it is equals to 4n minus m square. Okay, so what is s2? s2 is 4 into 2 minus 2 square, that is 8 minus 4, that is equals to 4. अब पॉइंट ये है कि हमें s1 दिया गया है, हमने जो अभी तक निकाला है. इसके बाद थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म मींस यू हैव टू फाइंड द a2 मतलब सेकंड टर्म AP का क्या होगा ये पता करना है. फर्स्ट टर्म वी नो कि इट इज 3 और पहले दो टर्म का सम 4 दिया, मींस अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो a1 इज 3, राइट? और हमें जो AP दिया गया है ये सपोज इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, इसमें पहला टर्म 3 लिखा, राइट? फिर बोल रहा है कि पहले दोनों टर्म का सम 4 है, इट मींस इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए. तो अगर फर्स्ट टर्म 3 है तो ऑब्वियस है कि सेकंड टर्म हमारा 1 होना चाहिए, देन ओनली when we add these two terms then we will get 4, right? So ये जो s2 हमारा आया है 4, ये यही से आता है. तो मींस पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 1. So this is nothing but what is the second term? तो second term is nothing but 1. लेकिन एनालाइज क्या करना है, एनालाइज यहाँ ये करना है कि सेकंड टर्म 1 आखिर आया कैसे. तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमने क्या किया है कि a2 को ऐसा लिखा है s2 minus s1, राइट? यहाँ से हम निकाल सकते हैं. दैट मीन्स कि हमें a2 निकालना था, इसके लिए हमने क्या किया, s2 की वैल्यू लिखी 4 माइनस s1 की वैल्यू है 3, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट? इन द सिमिलर फैशन यू कैन फाइंड एनी ऑफ द nth टर्म ऑफ दैट AP. लाइकवाइज अगर आपसे पूछा जाए a3 बताइए, जैसे यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट, इसमें हमें a3 फाइंड करना है. a3 क्या होगा, a3 होगा s3 माइनस s2, राइट? और s3 क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो s3 इज नथिंग बट 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर, दिस इज s3 माइनस s2 वी हैव ऑलरेडी फाउंड, हमने इसे पहले से फाइंड करना है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 12 minus 9 minus 4. So this is 3 minus 4, that is equals to minus 1.
तो ये जो थर्ड टर्म हमें फाइंड करने के लिए दिया गया था फोर्थ पार्ट का, वो -1 होगा, राइट। In the similar fashion, you can find the 10th and nth term of this AP. So this is nothing but and I would like to tell you कि nth term of this AP का मतलब क्या है। nth term means हमें an निकालना है, और जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि a2 अगर हमें फाइंड करना होता है तो उसको s2 minus s1 करते हैं, a3 फाइंड करना होता है तो s3 minus s2 करते हैं। In the similar fashion अगर an फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे sn minus 1 फाइंड करके भी कर सकते हैं। So this is the formula, this is the relation that you should remember। ये एक ऐसा रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए कि nth term और sum of n terms of an AP के बीच में क्या रिलेशन है, वो अगर आपको पता है then that is well and good to solve such kind of questions। So this is all about this question। We will now let us move to the next question। So this is the next question। Question is, sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prizes। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 700 रुपीज, सपोज आप एक स्कूल में आपको एक प्रोग्राम करवाने के लिए दिया गया है जिसमें आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो इन दैट केस यू हैव बीन गिवन 700 रुपीज। 700 रुपीज का कैश आपको दिया गया है और बोला गया है कि यू हैव टू distribute this 700 rupees among 7 students, right। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है on the basis of academic performance कि हर प्राइज का, हर जो प्राइज हम कैश प्राइज दे रहे हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज का होना चाहिए, राइट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हर प्राइज का क्या वैल्यू होगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये 20 रुपीज का मैं जो डिफरेंस बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ, लिखा इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मींस सपोज रैंक 1 वाले को अगर 100 रुपीज प्राइस में दिया जा रहा है तो रैंक 2 वाले को 80 रुपीज दिया जाएगा। इट इज ऑब्वियस कि सारे रैंक वाले को सेम प्राइस तो नहीं दिया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग वन लिखा हुआ है, राइट। सो हमें क्या करना है कि हमें इससे, इस क्वेश्चन को, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें से हमें कोशिश करनी है ये फाइंड करने की कि क्या क्या गिवन है, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करें। सो एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 700 दिया हुआ है, मींस वी डोंट नो, और हमें दिया है 7 कैश प्राइजेस दिए गए, मींस हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है उस एपी के कि 7 प्राइजेस देने हैं, मतलब 7 टर्म्स का यूज होगा। तो n इक्वल्स टू 7 गिवन है और S7 इक्वल्स टू 700 दिया, मींस 7 प्राइजेस का जो सम होगा वो 700 रुपीज है। दिस इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन। और इसके अलावा दिया है कि हर प्राइस का, कैश प्राइस का जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज का है, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 20। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और अगर a निकल गया तो फिर हम बाकी सब कुछ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और इसके यूज से, इसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट कि Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a plus n-1 multiplied by d। okay, so Sn is given, means S7 equals to 7/2 2a, a we don't know and we have to find that value, plus 7 minus 1 multiplied by d, d is 20। S7 is already given, that is 700। इस 2 को इधर लाएंगे और 7 को यहाँ डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 2a plus 6, 7 minus 1 is 6 into 20, that is 120। यहाँ से ये 100 टाइम्स में, दिस इज 200 minus 120 equals to 2a, and from here you will get 2a equals to, this is 80। so from here a equals to 40, a equals to 40। अब हमें AP सीक्वेंस बनाना है, तो सीक्वेंस AP में क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म 40 है और कॉमन डिफरेंस 20 का है जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 60, इसके बाद 80, देन 100, then 120, then 140, and then 160। so these are the cash prizes that will be distributed among 7 academic performers, right। कि सबसे जो टॉप करेगा, जो बच्चा टॉपर होगा, he will receive 160 rupees।
सेकेंड रैंक वाले को 140 मिलेगा, थर्ड को 120, फोर्थ को 100, फिफ्थ को 80, सिक्स्थ को 60 एंड सेवेंथ रैंक होल्डर को 40 रुपीज मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इफ यू ट्राई टू चेक कि आपने सही बनाया है या नहीं, इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है जितने भी टर्म्स आए हैं इन सबको आप ऐड कीजिए। इफ इट इज equals to 700, that means you are on the right track. Okay, so this is all about this question. Now let us move to the next question. So now the next question is, spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and so on. Total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles. हमें अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें दो तरह के सेमी सर्कल दिख रहे हैं। दो तरह के का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियस वो डिफरेंट है और जो दूसरा सेमी सर्कल है, लाइक सपोज एक सेमी सर्कल आपको ये दिख रहा होगा, दिस वन। इस सेमी सर्कल को अगर हम देखते हैं तो इसका जो रेडियस है वो ये वाला पार्ट है, राइट? लेकिन जब हम दूसरा सेमी सर्कल देखेंगे, दिस वन, इसका रेडियस हमारा ये वाला, दिस वन। ओके, सो हम बेसिकली अगर ये पाएंगे तो ये देखेंगे कि ये एक छोटा सा सेमी सर्कल है, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल, इसका सेंटर बी है, फिर ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका सेंटर ए होगा और ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसका सेंटर बी होगा। मीन जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं वो अल्टरनेटिवली सेंटर ए सेंटर बी, सेंटर ए सेंटर बी करके बन रहे हैं। और हमें जो बोला गया वो बोला गया 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स इस तरह से बनाने हैं और उन सभी का लेंथ फाइंड करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें अगर पूछा जाए कि ये जो फर्स्ट है इसका लेंथ कितना हो, तो वी ऑल नो कि जो लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, ये जो पार्ट है इसका इसका ये जो स्पाइरल का ये पार्ट है इसका लेंथ, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका लेंथ अगर हम फाइंड करते हैं सो दैट इज इक्वल्स टू पाई आर और आर इज 0.5, राइट? मींस इसका जो लेंथ होगा ये वाले पार्ट, दिस इज नथिंग बट पाई आर। ओके, अब अगर इसकी लेंथ की बात की जाए सो दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 1, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो 1 होगा, पाई आर। नेक्स्ट होगा पाई 1.5, इसके बाद होगा पाई इंटू 2 और सो ऑन, राइट? सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। एपी का फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज 0.5 पाई, ओके, और जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा डी दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस 0.5 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 पाई, ठीक है? तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो इसका लेंथ मिल गया, इसका भी लेंथ मिल गया, और हमें टोटल कितने ऐसे सेमी सर्कल्स का लेंथ फाइंड करना है? तो टोटल 13 सेमी सर्कल के लेंथ फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू 13, राइट? तो नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि हमें सम फाइंड करना है 13 सेमी सर्कल्स का के लेंथ का, राइट? एस 13 इक्वल्स टू 13/2 दैट इज n by 2 2a, a means 0.5 by 2a plus n minus 1 into d is 0.5 by, राइट? सो दिस इज अबाउट कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 0.5 into 2 दैट इज 1, तो ये पाई हो जाएगा, प्लस दिस इज 12 into 0.5 पाई, ओके? सो दिस इज 13/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई प्लस ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 6 पाई, तो यहाँ से 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 पाई, राइट? और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, सो दिस इज इक्वल्स टू 13/2 into 7 into 22/7, 7 कैंसिल्ड आउट, ये 11 टाइम्स में, एंड 13 into 11 दैट इज 143। यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर, सो वी विल यूज द यूनिट सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें पूछा गया था कि टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल के टोटल लेंथ क्या होंगे? सो दिस इज नथिंग बट 143 सेंटीमीटर। मींस जो छोटा सर्कल है उसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाला,
उसके बाद फिर दूसरे वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाला और इस तरह से 13 सेमी सर्कल के पेरीमीटर्स को हम लिखते चले गए। ये एपी फॉर्म कर रहा था, इस एपी को हमने पहले लिखा, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखा, देन कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, देन वी नो कि n इक्वल्स टू 13 होगा क्योंकि 13 सच सेमी सर्कल्स का यूज किया जा रहा है, और उसके बाद S13 की वैल्यू निकालेंगे सबको सम करने के बाद, then we will get the final answer 143 centimeter. So this is all about the question, and now let us move to the next. So dear students, this is the last question of this topic, arithmetic progression. Although ये chapter almost complete हो गया है, but still if you have any doubt, if you have any query, then you can comment on the comment section and I will try to solve your problem, right? So this is the last question for now. 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs को इस तरह से रखा गया है such that कि सबसे बेस में 20 logs को अरेंज किया गया है, then 19 logs arranged हैं, then 18 logs, then 17, then 16, then 15. और इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AP का फॉर्मेशन हो रहा होगा, पहले 20, then 19, then 18, then 17, then 16, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो AP का फॉर्मेशन हो रहा होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले 20 logs एट द बेस लिखा है, बॉटम रो में 20 लॉग्स हैं, देन उसके बाद 19 है, देन उसके बाद 18 है, देन 17, देन 16, देन 15 एंड सो ऑन, राइट? सो दिस इज गिवन ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है कि जितने भी रोज हैं, वी डोंट नो नंबर ऑफ रोज, वी हैव टू फाइंड एक्चुअली कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो हमें फाइंड करना है, राइट? तो जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वी हैव टू फाइंड, तो n वी हैव टू फाइंड, ओके? नाउ आल्सो इट इज गिवन कि टोटल लॉग्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 200, राइट? सो सम ऑफ ऑल द लॉग्स मींस जितने भी लॉग्स का यूज किया गया है दैट इज 200, सो Sn इक्वल्स टू 200 गिवन है। इस AP को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम पाएंगे कि फर्स्ट टर्म इज 20 एंड कॉमन डिफरेंस इज -1, राइट? यहाँ से यहाँ तक हमारा बेसिकली क्वेश्चंस का जो गिवन पार्ट है वो कवर हो जाएगा। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि हम Sn फॉर्मूला जानते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn इज 200 इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, राइट? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, सो दिस इम्प्लाइज 400 इक्वल्स टू n 41 माइनस n, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 400 इक्वल्स टू 41 n माइनस n स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं, इस पार्ट को इस साइड लेके आएंगे, सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 41n माइनस प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इसको देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका बताया था। फर्स्ट वन इज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकेंड वन यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल। यहाँ पे मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा इजी लग रहा है तो आई कैन गो विद इट, ओके? सो यू कैन राइट इट डाउन n स्क्वायर। अब कैसे स्प्लिट करते हैं? स्प्लिट करने का मतलब है कि इस -41 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे देन वी शुड गेट -41, एंड जब उन्हीं दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी शुड गेट 400 मल्टीप्लाइड बाई 1। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ओके? सो तो वैसा कैसे मिल सकता है? तो वैसा हमें ऐसे मिलेगा कि -41n को हम लिखेंगे -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। आप इसको चेक कर सकते हैं, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट -41n और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 400, राइट? नाउ मूविंग ऑन, n माइनस 16, यहाँ से -25 n minus 16 equals to 0, and from here n minus 25 n minus 16 equals to 0, right? So अब यहाँ से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो ये पार्ट 0 हो जाए
या ये पार्ट 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक पार्ट भी 0 हो जाएगा, देन यू विल गेट द करेक्ट इक्वेशन, मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और दोनों पार्ट भी 0 होगा तो भी सच चलेगा, मीन्स 0 multiplied by any number is 0, any number multiplied by 0 is 0, that is okay. 0 multiplied by 0 is also 0. So from here you will get n equals to 25 or n equals to 16, right? अब पॉइंट ये है कि क्या हमें दोनों n की वैल्यू लेनी है? द आंसर इज नो। रीजन क्या है कि हम दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि n जो है वो 25 दिया है और हमारे पास जो बॉटम में नंबर ऑफ लॉग्स का यूज किया गया था वो 20 यूज किया गया था, राइट? तो 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, तो अगर हम ऐसे करते भी चले जाएं तो भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 25 तो नहीं बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अगर बनेगा तो वो 20 बन सकता है। सो इट मीन्स कि ये 25 वाला नेग्लेक्ट किया जाएगा, दिस नीड टू बी नेग्लेक्टेड, ओके? सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड। तो you will get the value n equals to 16, means there are 16 rows जिसमें हम 200 logs को प्लेस करेंगे। और if you have any doubt then you can check it out कि आप 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 इस तरह से करते हुए 4 तक जाइए। और हमें ये अब चेक करना है कि सबसे ऊपर वाले में मीन्स टॉप मोस्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स का यूज किया गया है। मीन्स बेसिकली कि हमें A16 निकालना है, मीन्स कि 16th टर्म पे जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो A16 इज नथिंग बट A plus 15D, राइट? और A is 15D means 16 minus 1 into D, so this is nothing but A plus 15D, और फर्स्ट टर्म इज 20 plus 15 into D is minus 1, so 20 minus 15 that is 5. So this is your answer कि 16th टर्म में मीन्स 16th रो में हमें 5 लॉग्स की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स ये जो AP है इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 5 होगा, और इन सबको जब हम सम करेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 200 लॉग्स, राइट? So this is the question that you need to understand and you need to visualize also, कि आपको विजुअलाइज करना है कि जो बॉटम है, बॉटम लेवल है, वहां पे 20 लॉग्स प्लेस्ड थे, उसके बाद 19 हुए, फिर 18, 17, 16, 15, 14, 13 एंड टिल द टॉप रो होगा उसमें हमारे पास 5 लॉग्स होंगे, राइट? और उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें 200 लॉग्स मिलेगा। So this is the word problem that we are discussing here. So this is all about this question, but this is the last video of this chapter. So I would like to suggest you कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करें प्रॉपर NCERT बुक से, या फिर कोई भी RS अग्रवाल, RD शर्मा या फिर कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं। Then you should practice lot and lot of questions so that you should not get any kind of doubt. And in case if you have any doubt, then kindly comment in the comment section. I will try to resolve your all doubts. I will try to make another video regarding your doubt sessions. So till then, I thank you very much.